everyone and welcome for welcome to today's sessions. Today we are having Swati ma'am and she is 2018 pass out and currently she is working as senior software engineer at Capgemini. Welcome ma'am and thank you so much for coming and yes accepting this. I would like to just give I want you to just tell something about yourself, like how you were doing at REC and how you are doing now. Hi guys, this is Swati from 14-18 batch of RAC, and I am from core CAC department. How would the life of a software engineers look like? What we used to think in our college कि ऐसा होगा वैसा होगा, but actual life में वैसा होता नहीं है software engineer No, की life. it looks like sophisticated, and one of the example you only, at least you in software, and you must be knowing what are the challenges in software. It looks like, yeah, software engineer means this is rocket science, the things we are happening, and I'm getting too much of attention for that. Yeah, if you are a software engineer and in a good company, then you will get attention. But it doesn't mean that you will not survive for that. Right. काम बहुत होता है. This is the very, very remarkable things of software. And I think, yeah, you will get most of the time to enhance yourself, your soft skills, and जो कि बहुत ही important है. Soft skill starting में नहीं उतना कोई देखता, but during work you will get to know and you will understand also. You have to connect with many people and you will get to know that हाँ ये projects है and जो हम सोचते हैं बीटेक टाइम पे कि या projects ऐसे होते होंगे वैसे होते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स वेरी नॉर्मल, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस. प्रोजेक्ट्स बहुत ही नॉर्मल से होते हैं, उसमें थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी दिखाना होता है एंड दैट्स ऑल. एंड हाँ, उसको क्रैक करना इम्पोर्टेंट है. जितना हम स्टडी करते हैं वो उससे ज्यादा मतलब जितना हम स्टडी करते हैं ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला काम मिलेगा करने को, बट ऐसा नहीं होता. स्टडी जितना करते हैं उसमें थोड़ा ही काम आता है. Okay, मैम what would you say, like preparation कैसे आपने किया था जब आपका फाइनल ईयर था, तो आपने क्या 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 रिसोर्सेज यूज किए, कहाँ से कैसे प्रिपेयर किया और कैसे जॉब अप्लाई किया आपने? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. एंड हम लोगों के टाइम पे तो माय गॉड सबने देखा होगा. आई थिंक 2020 वाले बैच में भी देखा होगा हमारे स्ट्रगल कॉलेज में. But I think our juniors will get time to uh, attend the internship and all in college. But हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था. We got a fake company, so called. So that was a very big challenge. But मेरा एक concern है, and there is a very thin line कि what you want to do. बहुत सारे लोग एक दूसरे को देखते हुए सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं, but after 1 year they used to left that job. It depends कि आपको क्या करना है, what you have to do, because I was very determined कि हाँ, I don't want to do MBA further studies. बिल्कुल भी नहीं. I don't want to study Yes. anymore. So I was very clear कि yeah, I have to do anything in software only. Either it is a development, either it is a testing, but I have to do something. So always try to gain something from another institute. Try to go for Kolkata, which is very close to our state. So you can go to Kolkata and learn many of the I think languages. And yeah, Java is important, and everyone should know Java. It is very important, and you can't deny कि हाँ अगर तुम्हें कोडिंग करनी है तो Java नहीं आना है, but Java तो confirm ही आना है. Even for testing also Java is very important. So I learned PHP. I tried to be a PHP developer, but I didn't get option in Kolkata. We were very demotivated at that time कि या फेक कंपनी है, वापस जाके ड्रामा होगा कॉलेज में एंड ऑल ये सब. But after that, I didn't get too much options, and I was very disappointed also from engineering and all. So I went to Bangalore.
Yeah, it is a very nice place, man, very, very, very nice place for freshers actually. If you want to go for any means, हाँ तुम्हें क्या करना है at that point you got to know. Yeah, इतना भी ज्यादा tough नहीं है. And मैंने वहाँ Q Spiders join किया था बैंगलोर में. I joined Q Spiders and then I had a training of automation testing. That was very trending that time. So अभी भी ट्रेंडिंग है. ऑटोमेशन टेस्टिंग किया. जावा मेरी बहुत अच्छी थी कॉलेज में ही. तो वहां से दे यूज टू आई मीन प्रोवाइड फ्रेशर्स को भेजते थे. हाँ, मतलब कि सारे प्लेसमेंट्स होता था हर सैटरडे संडे. एट द टाइम यू ज्वाइन दैट इंस्टीट्यूट एंड तब से ही सैटरडे संडे you will get option to attend all the placements and all. So that was a very, very, very master stroke for me. मेरे पास एक ऑप्शन नहीं था कहीं से अप्लाई करने को. एंड देन आई गॉट एवरी सैटरडे संडे एक से एक कंपनी. तो कंपनी ऑल्सो डिपेंड ना कि दे यूज टू कीप ग्रेडिंग, मतलब हाँ कट ऑफ कि 70% से ऊपर जो है वो इस कंपनी में जा सकते हैं. तो आई वॉज हैविंग वेरी गुड मार्क्स, दैट इज 90 CGPA ओवरऑल. तो उसमें मुझे कभी कोई ऐसा नहीं हुआ. So I got option to attend all the placements. वो जो भी placements आते थे मैंने सारे ही attend किए. And वहाँ पे जो trainer होते हैं you have to impress them. क्योंकि trainer अगर चाह ले कि या you are a bright person, you are a good person, then they will do hook and crook to get placed for you. तो बहुत ही अच्छी थी वो मेरी experience. I was in Bangalore for only 1 month. And course was of 3 months, and in 1 month I got placed. And उसके बाद 12 hours का जो वो classes होता था courses completion का, that was very hectic, but I got placed. That's the more important. Okay. And what was your interview experience at that time? Whatever companies you have applied, which kind of questions they were asking? Interviews. See, I have not attended too much company because I mentioned na in 1 month I got placed. So three failures I had. No, 4 failures actually. 4 failures. First was IBM, and IBM coding round was okay, but वो जो होता है ना mathematics, that was very aptitude, वो बहुत ही ज्यादा बेकार था. एंड वो सीरियसली बहुत बेकार था. मैं अपना फेलियर नहीं छुपा रही. दैट वाज रियली बहुत ही बेकार था आईबीएम का. एंड हाँ, वो बहुत ही टफ क्वेश्चंस होते थे. उसमें भी कुछ बच्चे ने क्वालिफाई किया होगा, बट मेरे ग्रुप से एक भी नहीं किया था. सो जो करते होंगे वो साइंटिस्ट ही होंगे, ऐसे क्वेश्चंस थे उसमें. तो हाँ, तो फर्स्ट फेलियर वो था. तो मुझे वहां पे ग्रुप डिस्कशन ऐसा कुछ ऑप्शन मिला नहीं. मैं सेकेंड राउंड में ही आउट हो गई, बट कोडिंग राउंड क्वालिफाई था. दूसरी कंपनी जो थी वो मेरा फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड जो होता है नॉर्मल टेक्निकल एंड एप्टीट्यूड, दैट वाज ओके. थर्ड राउंड जो था वो ग्रुप डिस्कशन का था. तो दैट टाइम पार्शलिटी हुई थी. And that was a company of Mumbai. And मेरे साथ वाली जो थी उनसे क्वेश्चन पूछा गया, बट शी वाज नॉट नोइंग एक्चुअली ग्रुप में होता है. देन शी आस्क्ड मी, तो मैंने उसे बता दिया आंसर. सो मैंने 5 आउट ऑफ द 5 आंसर दिए थे. उसमें 5 ऑफ द 3 दिए थे, बट ग्रुप डिस्कशन में शी वाज सेलेक्टेड, आई वाज नॉट सेलेक्टेड. So that time also I got failed and I got disappointed also. What is this type of group discussion? If you are giving an answer, then they should select you. But ऐसा नहीं होता है, because उनको ये भी लगता है कि अगर ये आएंगे हमारी कंपनी में, then they will get another good company's option, then they will leave our company. तो उनके माइंड में ये भी होता है, तो they don't take you. तो उस टाइम पे I'll say one thing: don't be disappointed. तुम्हारे लिए जो कंपनी होगी दे विल डेफिनेटली सिलेक्ट यू. एंड वन मोर थिंग कि हम जब भी जाते हैं ना इंटरव्यू के लिए, देन वी थिंक कि नहीं नहीं ये मेरे को निकालना ही निकालना है, क्योंकि एज अ फ्रेशर बहुत प्रेशर होता है माइंड में. और ऐसे कॉलेज से निकलना जहाँ पे प्लेसमेंट्स ना हो, वो बहुत ही वर्स्ट पार्ट होता है लाइफ का. बिकॉज अगर तुम वैसे कॉलेज में हो जहाँ पे प्लेसमेंट हो रहा है, देन यू आर वेरी लकी.
कि तुम कॉलेज से ही प्लेस्ड हो जाओगे, बट जब बाहर निकल के जाते हैं ना तो वो इतना इश्यूज होता है पर्सनल लाइफ में, फिर फैमिली फैमिली प्रेशर एंड बहुत कुछ ऐसा होता है। तो सब कुछ साइड में रख के ना बस अभी से एक चीज में लग जाना चाहिए कि हाँ मुझे एप्टीट्यूड करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्टीट्यूड करना है, एप्टीट्यूड करो, एट एनी कॉस्ट करो, कोडिंग का प्रैक्टिस करो, वो भी बहुत ही जरूरी है। और थर्ड जो है वो सॉफ्ट स्किल, थोड़ा बहुत भी सॉफ्ट स्किल हुआ स्टार्टिंग में तो चलता है, दे डोंट माइंड एनीमोर। हाँ कुछ नई चीज थी जब मैं इंटरव्यूज दे रही थी तो उसमें आया था, दैट इज वर्स एंड राउंड। वर्स एंड राउंड आया था। So Capgemini, right now in Capgemini, so Capgemini is a very great place for freshers. मैं तो ये बोलूंगी कि it is very easy to crack. इतना भी इजी नहीं होता है, हाँ अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है तो इट इज वेरी इजी। और उसमें क्या है ना कि फर्स्ट है एप्टीट्यूड, कोक्यूब्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कोक्यूब्स का टेस्ट होता है, तो Right. कोक्यूब्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करो। एंड सेकंड होता है टेक्निकल ऐसे राइटिंग, तो वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया ना डेली बेसिस पे सो यू विल गेट ओवर इट। एंड फिर थर्ड जो होता है वो वर्सेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे बच्चे बहुत ही ज्यादा रिजेक्ट होते हैं। मतलब वो तो होते ही है, फर्स्ट और सेकंड राउंड में बल्क अमाउंट ऑफ बच्चे रिजेक्ट होते हैं, लेकिन उनको कितने बच्चे लेने हैं वो वर्सन राउंड में ही वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अगर 100 है तो 100 में मुझे 50 लेने हैं, तो वर्सन राउंड में ही वो करेंगे। क्योंकि वो जो वर्सन राउंड होता है ना, एक्चुअली फ्रेंच कंपनी होती है तो वो उनका एक्सेंट अलग होता है, वो अमेरिकन एक्सेंट में बात करेंगे, या फिर वो बोलेंगे जम्बल वर्ड ऐसे कॉल पे मतलब उसको सॉल्व करना होता है। हम लोग कॉल पे होते हैं, वो कुछ जम्बल वर्ड बोलते हैं, देन हमें वो कॉल पे ही बताना होता है, फिर वो जो बोलते हैं वो हम उनको रिपीट करते हैं। तो वी हैव टू गिव दैट आंसर इन दैट एक्सेंट ओनली कि उनको समझ आए या वी आर करेक्ट। तो वो बहुत टफ होता है। वो सुनने में इजी लगता है कि अरे हाँ रिपीट ही तो करना है, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि उनका एक्सेंट अलग होता है, हमारा एक्सेंट अलग होता है, तो उसको अंडरस्टैंड करके बोलना थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वहां पे अगर सिलेक्ट हो गया तो कैप्जन इज बस तुम्हारे पास 1 मंथ के बाद तुम्हारे पास लेटर आना है, तो ऐसा है। मैम हुआ आपका क्या मिस्टेक्स रहा, जैसे मोस्टली कॉमन स्टूडेंट्स बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं प्रिपरेशन के टाइम, तो मैम आपको क्या लगता है कि क्या क्या मिस्टेक्स यूजुअली मोस्ट कॉमनली हो ही जाते हैं स्टूडेंट से और ओवरलुक कर जाते हैं कि अरे इस पे ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि ये सारी गलतियां हैं जो अगर नहीं किया होता तो शायद किसी न किसी कंपनी में प्लेस्ड होते, तो हम्म वैसे क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हम्म हैं? मेरे पास गाइडेंस नहीं थे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं घर में भी सबसे एल्डर हूँ। एंड कहीं से कुछ नहीं होता, वो रिश्तेदार बोलते हैं करवा देंगे बट वो भी हेल्प नहीं यस। मिलता। सो उस टाइम पे क्या होता है ना कि मेरे साथ ये गलती हुई कि जो थर्ड ईयर था मेरा, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, तो थर्ड ईयर पे मैंने थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में मैंने हाँ पीएचपी सीखा, ये किया वो किया, लेकिन फोर्थ ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर था उस पे हम लोगों ने टाइम बहुत वेस्ट करी। वो सारा जो स्ट्राइक्स था, ये था वो था, तो वो सब टाइम जो होता है ना बहुत ही गोल्डन टाइम होता है किसी भी फ्रेशर के लिए। सो आई विल सजेस्ट कि अगर यू जो भी अभी यहाँ पे ज्वाइन किए हैं फ्रॉम जेएससी, so they are very lucky if they have not done any type of means preparation, then they are very lucky कि अभी COVID-19 की वजह से सब कुछ रुका हुआ है। So you राइट। have time, still you have time। तो उसमें क्या होता है ना कि I was having one book and that is for MCAT। MCAT या फिर कोक्यूब्स ऐसा कुछ, इलिटमस, ये सब कुछ एग्जाम देना ही चाहिए स्टूडेंट्स को, बट मैंने नहीं दिया। और जो कि ये मैंने गलती करी है। सी इट डजेंट मैटर ना कि तुम्हें वहां से प्लेसमेंट मिली या नहीं मिली, बट यू शुड ट्राई एटलीस्ट कि हाँ मुझे एमकैट देना चाहिए, कि कोक्यूब्स देना चाहिए, लिटमस देना चाहिए, प्रैक्टिस होता रहता है उसमें। तो ये मेरी गलती थी, उस टाइम पे मुझे देना चाहिए था फोर्थ ईयर में। एंड सेकेंडरी
मैं सजेस्ट करूंगी कि बुक्स जो होते हैं ना वो RS अग्रवाल मत करो यूज क्योंकि उनके क्वेश्चंस जो है बहुत रिपीटेड होते हैं एंड बहुत इजी होते हैं, दैट मेक्स यू वेरी लेजी। एंड जरूरी नहीं है कि कंपनीज जो है RS अग्रवाल के क्वेश्चंस पूछती है। तो आई विल सजेस्ट गो एंड डू R&D ऑन गूगल। गूगल पे जाओ, R&D करो, कहीं से भी क्वेश्चंस मिले, जो भी कुछ मिले, कोई भी लिंक मिले, क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस ना, कोई भी लिंक मिला उसमें हम ट्राई कर लिए, लाइव टेस्ट दे लिए। तो गूगल करो, वहां पे ऐसे गूगल करो कि हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स फॉर एमकैट, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर फॉर कोक्यूब, तो वहां से क्वेश्चंस मिलेगा। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि एक वो कुएं की तरह ना, एक RS अग्रवाल में डोंट बी लिमिट योर सेल्फ कि हाँ एक बार बुक बना लिया तो अभी क्या करेंगे, अब फिर से वही क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चंस के जो वैरायटीज होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं। गूगल पे जा करके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, मेनी क्वेश्चंस यू विल गेट इफ यू विल डू R&D। वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कैपजेमिनी ही सर्च करोगे तो मिल जाएगा, तो राइट। प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ एमकैट ही करोगे तो मिल जाएगा। तो वहां से क्वेश्चंस को सर्च करो, वहां से क्वेश्चंस को ट्राई करो, वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, कोडिंग को सॉल्व करो। एंड ये है। एंड जो मैंने तीसरा गलती था मेरा, वो ये था कि मैं एक्चुअली क्या थे ना कि कौन से लैंग्वेज को लर्न करूँ, ये चीज था। तो मेरा जावा अच्छा था, तो मुझे JDK, डेटाबेस, ये सब को ज्यादा इनहेंस करना चाहिए था 4th ईयर में, ना कि PHP को। वो मेरी गलती थी, क्योंकि बस मुझे ऐसा लगता था कि कहीं से जॉब लेना है, PHP करना है तो PHP करके बस जॉब लेना है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था एट दैट टाइम। मैं अभी रियलाइज करती हूँ कि मुझे JDK, जावा का एडवांस्ड वर्जन या डेटाबेस, इन सब चीजों का ट्रेनिंग करना चाहिए था। मेरे पास वो एडिशनल स्किल्स होता टू शो। तो राइट ये था या मैम। कैसे जॉब रोज एक CS स्टूडेंट को ढूंढना चाहिए? फॉर एग्जांपल बहुत सारे को ये कंफ्यूजन होता है कि मैं किस जॉब रोल के लिए अप्लाई करूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, बहुत सारे पोजीशंस होते हैं कि कंपनी का जब भी ओपनिंग्स रहता है, बट ये क्लियर ही नहीं हो पाता है कि किस अपने को किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। तो वो कैसे स्टूडेंट चूज करे कि उसको किस फील्ड में, मतलब कौन सा पोजीशन सही है एक CS स्टूडेंट के लिए? देखो क्या होता है ना, ये तुमको काला सच बताएंगे MNC का। तो multinational company, yeah, it is very good for fresher, but it is very bad for fresher also. Actually क्या होता है कि if it depends on your luck, कि हाँ मैंने अप्लाई किया, मुझे MNCs मिली, एंड वो तुम्हें लेंगे, तुम्हें अपने ये कंपनी में बुलाएंगे, एंड देन दे विल कीप यू ऑन बेंच। तो दो टाइप की कंपनी होती है। पूरे IT में दो टाइप की कंपनी होती है, दैट इज सर्विस बेस्ड एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट बेस्ड। सो एज अ फ्रेशर अगर प्रोडक्ट बेस्ड मिल गया, तुम दुनिया के सबसे लकी पर्सन हो। राइट। तो या इफ यू गेट प्रोडक्ट बेस्ड देन इट इज वेरी गुड कि तुम्हारे लिए कि तुमने मतलब बहुत ही अच्छा अचीव किया है, यू विल गेट वेरी गुड चांस आगे बढ़ने के लिए या फिर नए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। तो अगर सर्विस बेस्ड में हुआ तो सर्विस बेस्ड में वो फ्रेशर्स को क्या करते हैं ना कि वो ये देख करके फ्रेशर्स को काम नहीं देते कि उसके पास स्किल क्या है। वो फ्रेशर्स को लिए एंड दे विल डिस्ट्रीब्यूट ऑल द फ्रेशर्स इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट। सो समटाइम्स कोई फ्रेशर का लक खराब हुआ ना तो दे विल गेट द टेक्निकल सपोर्ट ऑल्सो। तो ये सारी चीजें जो है ना सर्विस बेस्ड में थोड़ा लैक करता है। एंड आई विल फर्स्ट लेट, यहाँ पे जितने फ्रेशर हैं उनको पता नहीं होगा ना कि सर्विस बेस्ड क्या होता है एंड प्रोडक्ट बेस्ड क्या होता है, एंड व्हाई मैम इज टॉकिंग इन अ टेक्निकल वर्ड। सब सर्विस बेस्ड जो होती है, फॉर एग्जांपल अमेजोन जो है वो अपनी प्रोडक्ट बनाती है, उनके अपने प्रोडक्ट्स ज्यादा मार्केट में जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड हो गया। अब अमेजोन को एक दूसरी कंपनी की जरूरत होती है कि समवन विल डू एडिशनल वर्क फॉर अमेजोन
तो वो जो दूसरी कंपनी को हायर करती है वो सर्विस बेस्ड होती है। दैट मीन्स जो कंपनी 2 है दे विल गिव सर्विस टू कंपनी 1, तो उनका वो हो जाता है सर्विस बेस्ड। तो जैसे बहुत सारी कंपनी क्या करती है, दे विल डेवलप देयर प्रोजेक्ट बाय ओन कंपनी एंड दे विल हायर अनदर कंपनी फॉर टेस्टिंग। तो मेरी जो कंपनी है वो कैपजेमिनी वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस है, बहुत ही एक्सटेंड है। हाँ, मैं अपनी कंपनी की बड़ाई कर रही हूँ क्योंकि वो ऐसा है। एंड बहुत ही बल्क अमाउंट में फ्रेशर्स को लेते हैं, बट वहां पे एक्सपीरियंस होते होते वो चले जाते हैं, वो ज्यादातर निकल जाते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, दे चेंज कंपनी, बट फ्रेशर के लिए अच्छा है कंपनी। तो इसमें क्या होता है कि मैं जो अभी जो हमारे क्लाइंट है वो HSBC है, आई गॉट अ बैंकिंग प्रोजेक्ट। तो अगर कोई भी फ्रेशर बैंकिंग प्रोजेक्ट मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बैंकिंग प्रोजेक्ट में यू विल गेट टू लर्न मैनी थिंग। बहुत ही लूप्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा लूप्स होते हैं, एंड उसमें समझ नहीं आता। हम लोग अब एज अ फ्रेशर बस इतना ही सोचते हैं कि SBI बैंक होता है, PNB बैंक होता है, एंड उसके ऑनलाइन लिंक्स होते हैं, बट नो नो, कॉमर्शियल बैंक जो होती है, जो पूरे वर्ल्ड में जैसे फॉर एग्जांपल उसके जो क्लाइंट होते हैं ना, जैसे मेरे बैंक के जो क्लाइंट हैं वो है ये समटाइम्स फ्लिपकार्ट, समटाइम्स मर्सिडीज बेंज। तो ये जो है जैसे रिलायंस, सो ये जो है वो मार्केटिंग वाला कॉमर्शियल बैंक होता है। वहां पे एक टाइम पे बहुत कुछ होता है, वो कमर्शलाइज करते हैं प्रोडक्ट्स को पूरे वर्ल्ड में। तो बैंक का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि पैसे जमा करो और पैसा निकालो। तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट, बहुत चीज सीखने को मिलता है। इवन आई हैव लर्नड मैनी थिंग। कॉमर्शियल बैंक अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हमें वो चीज पता चलता है, बहुत सारे लूप्स होते हैं, बिजनेस नॉलेज इंक्रीज होता है। एंड एज अ फ्रेशर अगर बिजनेस नॉलेज इंक्रीज हुआ, इट इज वेरी गुड। क्योंकि जब कंपनी चेंज करना हो ना तो हम ब्लफ कर लेते हैं कि हाँ मैंने इस पे काम किया, मैंने उस पे काम किया, थोड़ा बहुत R&D करके। बट जो बिजनेस नॉलेज है ना उस पे ब्लफ नहीं कर सकते, बिकॉज बिजनेस नॉलेज हर कंपनी की सेम होती है। तो दे विल आस्क यू बिजनेस नॉलेज। एंड ये तो हो गया सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड एंड अबाउट द बिजनेस नॉलेज। तो एज अ फ्रेशर क्या होता है ना, हमारा मेंटेलिटी, कोई भी काम मिल गया भाई ठीक है, क्योंकि ऐसे तो मार्केट में इतना रिसेशन चल रहा है या इतना GDP लो हो रखा है, तो कहाँ से हमें काम मिलेगी। बट अगर तुम्हारे पास बहुत ही स्किल्स है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे ही बैच का बंदा का एग्जाम लूंगी, तो नाम लूंगी, दैट इज अभिषेक। अगर तुम अभिषेक टाइप के बंदे हो, अभिषेक ही नाम है ना उसका, आई थिंक, Yes, yes, या yes. अभिषेक टाइप के बंदे हो तो तुम्हें उतना दौड़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि कोडिंग नॉलेज उसके पास बहुत ही था। इवन आई रिस्पेक्ट हिज नॉलेज, अभी भी मुझे जरूरत होता है तो मैं उसके साथ टच में रहती हूँ। मुझे और किसी के बारे में उतना आइडिया है नहीं, बिकॉज वही एक जूनियर था, दे यूज टू कम टू मी एंड टॉक टू मी। तो आप और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कोडिंग में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मतलब उनको कोडिंग अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि मेरे से बहुत सारे मेरे जूनियर ऐसे थे जिनको कोडिंग अच्छा नहीं लगता था। तो आई विल सजेस्ट कि जो बिजनेस इंटेलिजेंस होता है या फिर यू कैन से टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग में जाओ। और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अभी अगर तुम्हारे पास कंपनीज नहीं है इंटरव्यू देने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए, देन आई विल, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली सबको सजेस्ट करती हूँ, गो टू बैंगलोर। वहां पे जाके क्यू स्पाइडर या जे स्पाइडर में, जे स्पाइडर में मत ही लेना एडमिशन, बिकॉज डेवलपिंग के लिए ना उतनी कंपनी नहीं आती है, क्योंकि वो लिमिटेड बच्चे को लेते हैं। टेस्टिंग के लिए बहुत कंपनीज आती है, क्योंकि क्या है ना कि टेस्टिंग में फ्रेशर्स ज्यादा जाते हैं, एंड वो बहुत ही अच्छा काम है, दूसरों की गलती निकालना कितना अच्छा काम होता है। तो बहुत ही अच्छा काम है। वहां पे जाने के बाद एडमिशन लो, वॉक इन्स भी दो, बट वहां पे हमको ऐसा लगता है कि क्यू स्पाइडर ओल्ड एयरपोर्ट रोड का जो इंस्टीट्यूट है वो इतना अच्छा है कि तुम्हें वॉक इन की जरूरत नहीं होगी। तुम थोड़ा भी मेहनत करोगे ना, मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा एप्टीट्यूड पे ध्यान दे, तो बाकी सब कंपनी मतलब इंस्टीट्यूट देख लेगी, ऐसा है। Correct, right. हाँ, तो ऐसा है। और मैं एक और भी चीज बोलूंगी, अगर ऐसा फ्रेशर स्टार्टअप कंपनी मिली है देन बहुत ही अच्छा है।
गधों के जैसा काम करना पड़ेगा, बट इट इज वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर. आई विल श्योरली सजेस्ट गो फॉर स्टार्टअप कंपनी एज अ फ्रेशर, क्योंकि स्टार्टअप में भी वैसे ही पैसे मिलने हैं, एमएनसी में भी वैसा ही पैसा मिलना है. बस फर्क ये होता है कि स्टार्टअप में कुछ फिक्स नहीं होता कि आज के डेट में मुझे पैसा मिलेगा, बट एमएनसी में फिक्स होता है कि अरे तुम सोते रहो, एट द एंड ऑफ मंथ तुम्हें पैसा आ जाएगा. तो ये डिफरेंस है बस. बट इट इज वेरी गुड अगर यू 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 आर गोइंग इन स्टार्टअप. स्टार्टअप में तुम्हें हर काम खुद से करना होता है, R&D करके हर चीज करना होता है, एंड दैट इज वेरी गुड. उस टाइम पे तुम्हें बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा कि हाँ आगे कैसे काम चलता है. मुझे दूसरी कंपनी में इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितना स्टार्टअप में करना पड़ता है. ओके मैम, प्रोजेक्ट पे आप क्या बोलेंगे, क्या कैसे प्रोजेक्ट्स फाइनल ईयर या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को करना चाहिए जो मे बी इंटरव्यू के वक्त उनको हेल्प कर सकता है? किस टाइप के पूरे प्रोजेक्ट्स? हाँ पूरे इंडिया में 90% लोग प्रोजेक्ट खरीदते हैं. डोंट वरी अबाउट प्रोजेक्ट, तुम भी जाके खरीद लो. मेरे को तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट किए बिना खरीदे. हाँ PHP पे था तो मोबाइल शॉप, ऑनलाइन मोबाइल शॉपिंग का प्रोजेक्ट था जिसका कोई वजूद नहीं है आज के जमाने में. एंड थोड़ा बहुत उससे दिखता है कि हाँ मुझे डेटाबेस आता है, फ्रंट एंड बैक एंड को लिंक करना आता है. तो आई विल सजेस्ट कि प्रोजेक्ट्स में इतना दिमाग मत लगाओ. खरीदना है खरीद लो, बस उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए. मैं तो बस डायरेक्टली सबको यही सजेस्ट करती हूँ, प्रोजेक्ट्स जो भी लेना है लो, बट उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए. तुम्हें उसका कोडिंग कोई नहीं पूछता कि तुमने अंदर से कैसे कोडिंग करी है. अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आती है तो उसमें सीधा बोल दो मैं यूआई डिजाइन की थी इस प्रोजेक्ट का. सिंपल सा बात है. तुम्हें यूआई डिजाइन HTML ये तो आता है, सबको आता है. नहीं आता तो थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेना चाहिए ये सब चीज का. अगर इंटरव्यू में जा रहे हो, टेक्निकल राउंड का इंटरव्यू होता है ना, तो वो बहुत फाड़ फाड़ के पूछते हैं. एंड उस टाइम पे अगर तुम्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है तो अपने फेलियर्स को कैसे छुपाना है ये भी एक आर्ट होता है. तो अगर 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 प्रोजेक्ट तुमने खरीदे हैं तो उसमें सीधा सीधा बोल देने का मैंने यूआई डिजाइन किया था, एंड मुझे इसमें थोड़ा HTML का मैंने यूज किया है. कौन सा प्रोजेक्ट से बैकएंड का नाम मत लेना, क्योंकि बैकएंड का नाम लोगे तो वो 1000 सवाल पूछेंगे. तो ऐसा है. और टेक्निकल राउंड में अगर तुम्हें अपने कोड पे या अपने लैंग्वेज पे इतना कंट्रोल है ना, तो वो जो तुमने प्रोजेक्ट किए हैं वो फिर मिनिमाइज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मुझे जावा आता है, एंड आई विल से हाँ तुम पूछ लो भाई जहाँ से क्वेश्चन पूछना है, एंड दे गोइंग टू आस्क डायमंड क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है. मैंने जवाब दिया. तो अगर तुम्हें कोड जावा ही, या एडवांस में मत जाओ, अगर कोड जावा ही बहुत ही अच्छे से आता है, हाँ तुम उसको इतना बता दो कि आप अगर कोड करने दोगे तो मैं उसका एटलीस्ट एल्गोरिथम के हिसाब से मीन्स रॉ कोडिंग तो कर सकती हूँ. तो इतना भी अगर बता दिया ना, दैट इज वेरी गुड, वेरी इनफ. वो बहुत ही पागल पागल कंपनी होती है जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती है. तो अगर तुम्हें नहीं आता तो कंपनी पागल है, मूव टू अनदर कंपनी. 50,000 से ज्यादा कंपनी है बैंगलोर में, या पूरे वर्ल्ड में, या पूरे इंडिया में. तो अपने आप को डाउन नहीं करने का. नहीं आता है, कंपनी पागल है, दूसरी कंपनी देख लेंगे. सही है मैम. बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लेकर, लाइक सी जाना चाहिए, C++, जावा, पाइथन, इतनी सारी लैंग्वेजेस हो गई है, लेकिन अभी भी मतलब ये क्लैरिटी नहीं है कि किसको कौन सा लैंग्वेज चूज करना चाहिए और क्यों चूज करना चाहिए और किस लैंग्वेज को लेके ही आगे बढ़ना चाहिए. इसकी क्लैरिटी के लिए क्या 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 सजेशन होगा आपका? सबसे पहली बात, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब लोग समझ लेते हैं कि इनको कोडिंग आती होगी. पहली बात है, लोग बोलते हैं कि कोडिंग आती होगी लेकिन नहीं आती. अभी भी यहाँ पे बहुत लोग प्रेजेंट होंगे जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा. सो अगर तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, तो तुम्हें कोडिंग अच्छी लगेगी. दैट इज द वेरी, मतलब साइंटिफिक रीजन है दोनों का. बिकॉज मैथमेटिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोडिंग. क्योंकि उसमें ना बहुत बच्चों को क्या होता है ना, एल्गोरिदम अच्छा आता है, डेटाबेस अच्छा आता है, बट वो कोड नहीं कर पाते. तो मेरा ये सजेशन होगा कि फर्स्ट अभी अभी इस टाइम पे ये डिसाइड करो कि तुम्हें प्राइवेट सेक्टर में जाना है या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है. सबसे पहले
हर स्टूडेंट को यही ट्राई करना चाहिए कि, बट हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना है, इसके पीछे रीजन ये होता है कि बीटेक करके कौन बैठेगा यार घर पे, उससे बेटर है कि कहीं जॉब ले ले, ऐसा सोचते हैं। मैं भी यही सोचती थी, तो मैंने सोचा तो मैंने किया। बट ये है कि अगर कोई सोच रहा है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट के लिए रुकना पड़ेगा या स्ट्रगल करना पड़ेगा, और अभी गवर्नमेंट का स्कोप बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर अगर अंडर कम जो भी अभी गवर्नमेंट है उसके अंदर जा करके देखो, या उसमें इकोनॉमी का अगर देखा जाए, तो गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ही बेकार हो रखा है। वो अभी ज्यादा नहीं निकालेंगे सीट्स एंड ऑल। तो आई विल सजेस्ट कि प्राइवेट में जाओ अगर काम करना है, और अगर कोई प्रेशर है मेंटली, तो प्राइवेट में जाओ। तो अपने चीजों को इस तरीके से डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। देखो, सी प्लस प्लस तो बेसिक है, ट्वेल्थ में पढ़ते हैं लोग, राइट? मैंने तो बचपन से कभी नहीं पढ़ा था। तो अगर सी प्लस प्लस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कोई भी इंटरव्यू में सी प्लस प्लस नहीं पूछता, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इफ यू आर गोइंग फॉर एनी टेक्निकल राउंड, देन वो इंटरव्यूअर को ये पता होता है कि जो भी स्टूडेंट आ रहा है उसको सी प्लस प्लस आता होगा, क्योंकि दे बिलोंग्स टू सीएससी, उसको सी प्लस प्लस आता होगा, ऐसा वो सोचते हैं। एंड उनका सोचना गलत नहीं है, क्योंकि सी प्लस प्लस बहुत ही बेसिक है और वो आना चाहिए। मेरा ये सजेशन है कि एटलीस्ट सी प्लस प्लस तो बहुत ही मैंडेटरी है, जो कि होना ही चाहिए। क्योंकि एक कोड का अगर तुम्हें पता चलेगा ना कि हाँ वो कैसे कोड करते हैं, तभी जावा पे जाओ। पहले सी प्लस प्लस, देन जावा। और अगर जावा और सी प्लस प्लस अच्छे से कर लिया, तो दूसरी अगर लैंग्वेज सीखनी है तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पाइथन सीख लो, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रूबी ये वो सब आया गया, वो कोई काम नहीं करता उस पे। हाँ, पाइथन इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, लेंथ ऑफ कोडिंग कम हो जाती है। एंड जो हम 4 लाइन में कोड लिखते हैं वो 1 लाइन में लिख सकते हैं। तो जावा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो जावा, अगर जावा नहीं आता तो पाइथन नहीं सीख पाओगे, और अगर सी प्लस प्लस नहीं आता है तो जावा सीखने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सी प्लस प्लस व्यू देता है कि कैसे हम कोड करते हैं। और अगर सी प्लस प्लस किसी को नहीं आता इन ऑडियंस को, आई विल सजेस्ट कि ऑक्सफोर्ड का सी प्लस प्लस का बुक है, क्योंकि मेरे को सी प्लस प्लस नहीं आता था। मैं जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रही थी, दैट टाइम मैं सी प्लस प्लस रट के दी थी, सीरियसली। क्योंकि हमारे कॉलेज में इतना कोई अच्छे से नहीं पढ़ाता कि तुम्हें ABCD पढ़ाए, ऐसा। और कॉलेज में सबको पता था कि CSE के बच्चे हैं तो वो सी प्लस प्लस पढ़ के आए होंगे। तो मुझे वो ऐसा लगता था कि अनदर अनदर प्लैनेट का आई मीन लैंग्वेज है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन आई प्रेफर्ड ऑक्सफोर्ड का सी प्लस प्लस का बुक, एंड मैंने उससे सेल्फ स्टडी करी है। एंड आई पर्सनली से आई कैन पर्सनली से, अगर कोई भी स्टूडेंट उस बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ लिया ना, तो उसको सी प्लस प्लस का तो पूरी तरीके से आइडिया हो जाएगा। क्या होता है, हेडर क्यों यूज करते हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि टीचर्स बोल देते हैं नहीं ये हेडर यूज होगा। अब नंबर्स है तो उसके लिए मैथ्स वाला हेडर यूज करेंगे, ये मतलब ऐसा नहीं होता कि हाँ करना ही करना है। उसके पीछे रीजन क्या है, अंडरस्टैंड दोस थिंग, तो वो समझ में आ जाएगा। तो आई विल सजेस्ट कि सी प्लस प्लस और जावा अगर बहुत ही अच्छे से आ गया 10 on 10, देन देर इज नो नीड फॉर अनदर लैंग्वेज। एंड इफ यू वांट टू improve your skills, then Python सीख लो, दैट्स इनफ। JDK डेटाबेस ये सब तो एडिशनल है ही, वो उसका नॉलेज तो होना ही चाहिए। बट कोडिंग लैंग्वेज में पाइथन तक चलेगा। मैम, लर्निंग रिसोर्सेज स्टूडेंट को कहाँ से पढ़ना चाहिए? लाइक टेक्निकल के लिए कहाँ से पढ़े, IT के लिए कहाँ से पढ़े, और फॉर एग्जांपल इंटरव्यू प्रिपरेशन स्पेसिफिकली ऐसा कोई रिसोर्स है जो मे बी शायद आपने फॉलो किया हो, या फिर मोस्टली CSE स्टूडेंट फॉलो करते हैं, कहाँ से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए? मेरा तो एक्चुअली बताया ना, मैंने इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन किया था। बट अगर लिंक्स वगैरह पूछ रहे हो तो मैंने बस वही R&D करी है, मतलब गूगल पे। और मैं क्या करती थी ना, जैसे हैकर रैंक होता है, तो वहां पे मैंने आज तक एक भी कोड पोस्ट नहीं किया।
सीरियसली मैं हैकर रैंक गई। मैं मेरे को कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था। लिटिल लिटिल था, आता था कोडिंग, बट उतना इंटरेस्ट नहीं था। कौन इतना दिमाग खपाएगा, सर के बाल चले जाएंगे ऐसा सोच के। तो बहुत ही ज्यादा आई मीन उसमें क्या होता है ना कि मैथमेटिक्स में पॉइंट में आंसर आ सकता है, बट कोडिंग में यू कान। एक फेलियर तो पूरा फेलियर। तो हैकर रैंक पे जा करके वहां पे साइन इन करके जो वहां पे जो डायनेमिक क्वेश्चंस होते हैं वो देख के, और उस पे जो दूसरे लोगों ने पोस्ट किया है ना उसको फॉलो करती थी। मैं खुद अपना कोडिंग कभी नहीं डाली हूँ। हाँ, जो बेसिक चीज होता है ना, जब हम मेरा कॉलेज में जो एक सर थे, हमारे डिपार्टमेंट के थे जो जावा पढ़ाते थे, तो वो बहुत ही अच्छे थे। उनकी वजह से मेरा जावा बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि जो फ्रेशर लेवल पे जो जावा प्रोग्रामिंग होता है, स्टार का, पैटर्न्स का, या फिर इवन नंबर, प्राइम नंबर, सो ये सब चीज जो है ना वो बेसिक है, वो हर एक फ्रेशर्स को आना चाहिए। तो ये सब जो ना बेसिक बेसिक थिंग, ऐसे सर्च करोगे गूगल पे ना कि क्वेश्चंस, कोड क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर, तो वहां पे आ जाएगा कि तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। एंड डोंट स्टिक टू एनी लिंक, मेरा यही कहना है। बहुत सारे लोग तुमको बोलेंगे कि नहीं, यू हैव टू फॉलो दिस लिंक, यू हैव टू फॉलो दैट लिंक, यू हैव टू गो फॉर दैट लिंक। नहीं, स्टूडेंट्स क्या होता है ना, एक लिंक पे बोर हो जाते हैं सबसे पहले। एंड अगर तुम हैकर रैंक ओपन किए हो, देन यू विल गो, हाँ मेरा हैकर रैंक मिला, कोडिंग मिला। कभी ऐसा कोड मिल गया कि दिमाग में नहीं घुसा तो फिर हैकर रैंक से मन उठ गया, एंड इट इज वेरी ऑब्वियस। तो इससे अच्छा है कि डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स को देखो। एम कैट को देखो, एम कैट क्या है ना, वो टेक्निकल एप्टीट्यूड सारे क्वेश्चन देती है। तो एम Right. कैट के क्वेश्चंस को देखो, को क्यूब्स के क्वेश्चंस को देखो, ई लिटमस के क्वेश्चंस को देखो, तो हैकर रैंक के क्वेश्चंस को देखो। डोंट स्टिक टू एनी वन लिंक। Yes. जितनी ज्यादा R&D करोगे उतनी नॉलेज मिलेगी। ऐसा सोच सोच के अगर पढ़ा ना, तो इंटरेस्ट भी आता है, और चेंजेस भी होती रहती है, इन्वायरमेंट भी चेंज होती है, और एक चीज से स्टिक होने का बोर भी नहीं होता। राइट मैम, रोड मैप आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? लाइक फर्स्ट अगर स्टूडेंट सीएस लेता है तो क्या माइंडसेट रखना चाहिए स्टूडेंट्स को एंटायर 4 इयर्स के लिए? मेरा ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था। मेरे को सीट मिली, मैंने एडमिशन ले लिया। लेकिन अगर सीएसई लेना है तो या मतलब जॉब तो मिल ही जाता है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने अभी तक देखा है कि जितने भी सीएस के लोग हैं जो मेरे कांटेक्ट में थे, दे हैव सेटल्ड एनीवेयर, मतलब कहीं ना कहीं वो खुद को सेटल कर चुके हैं। तो मेरे जूनियर्स भी बहुत सारे जो थोड़ा बहुत मेहनत किया तो हो गया। एंड आई कैन से जितने लोग अभी ज्वाइन किए हैं, दे आर eager टू लर्न और eager टू स्टडी, तभी वो ज्वाइन किए हैं, राइट। सो आई विल सजेस्ट कि जितने भी लोग यहाँ ज्वाइन किए हैं ना, उन लोग अगर थोड़ा भी किया, सीएससी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये दूसरे ब्रांच से बेटर है, आई विल से। बिकॉज अभी कोर डिपार्टमेंट का नाम बहुत ही बुरा हाल हो रखा है, एंड गवर्नमेंट सेक्टर का तो है ही। तो अभी सीएससी में जो है वो कहीं ना कहीं इतने सारी कंपनीज हैं, इतने सारे काम पड़े हुए हैं, एंड हमेशा कंपनी चाहती है कि हम फ्रेशर्स को बहुत एक्सप्लॉइट करें, बहुत एक्सप्लॉइट करें। तो तुम्हारे पास काम बहुत होता है फ्रेशर के लिए। एंड अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आईटी सेक्टर में सिर्फ सीएससी के बच्चे जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी कंपनी सब सारे ब्रांच के बच्चे को लेती है, मैकेनिकल ऑल्सो, इलेक्ट्रिकल ऑल्सो, सिविल ऑल्सो। बट वो बस वही 7 CGPA का कट ऑफ होता है, एंड तुम्हें वो टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। अगर अगर मैकेनिकल के भी होना तो यू शुड नो द जावा। इससे बट इसीलिए वहां पे बच्चे ना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, राइट। हाँ, मतलब अदर ब्रांच के बच्चों को कंपनीज कम मिलती है अटेंड करने के लिए, बट कंपनी मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी लेती है। तो सीएससी होने से तुम्हारा रोड मैप फर्स्ट ईयर से ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैंने सीएससी ली है, मुझे C++ पे फोकस करना है, जावा पे फोकस करना है, डेटा बेस पे फोकस करना है, अल्गोरिदम पे फोकस करना है, ऑटोमेटा ये सब छोड़ दो।
भाड़ में जाए, वो सब कहीं नहीं पूछता, कहीं नहीं पूछता है ऑटोमेटा या बाकी के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं। बस पास करने के लिए पढ़ लिया, बैक नहीं लगना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट। बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए, या फिर अगर किसी कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हो तो उसके पहले अपने सारे बैकलॉग्स को खत्म करो, देन गो फॉर अप्लाई। एंड दूसरी बात है कि जो सीएससी है तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके एक पेपर होता था जिसमें कि लाइफ साइकिल्स होते थे, हाइब्रिड लाइफ साइकिल या ऐसा कुछ। तो वो जो लाइफ साइकिल होता है ना, उसको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने का कोशिश करना चाहिए। तो सीएससी में जितने भी पेपर हैं वो सिर्फ मार्क्स बढ़ाने के लिए हैं। एंड जो बेसिकली फोकस है वो C++, डेटाबेस, जावा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बस ये 4-5 सब्जेक्ट है जो अभी भी अगर पहले के बुक्स निकाल के पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बिकॉज ये टेक्निकल चीजें पूछती हैं, मतलब जो ये काम आता है ड्यूरिंग योर वर्क ऑल्सो, ये बहुत काम आता है। और Right. किसी को भी डाउट्स हो या फिर उनके चाहने वाले किसी को भी डाउट्स हो तो Right. पूछ लेना You can क्वेश्चंस, make it. कि मुझे अच्छा लगता है बताना एक्चुअली। Yes, तो definitely. Yeah. Okay, ma'am. ठीक Thank है, you. बाय। Bye bye.